stirreth her nest, fluttereth over her young, taketh them on her wings, and beareth them. जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, उनको अपने परों पर उठा लिया और उन्हें सहा। How many times have I thought what God likened His heritage to eagles? कितनी बार मैंने सोचा अपनी विरासत से परमेश्वर ने उकाबों का क्या जोड़ा। And I find in the Bible that God calls Himself an eagle. He's Jehovah Eagle. And how would He do that? और मैंने बाइबल में पाया कि परमेश्वर स्वयं को उकाब कहता है, वो यहोवा उकाब है, और वो इसे कैसे करेगा। So I am a naturalist, so my first Bible was nature. If you just watch the way nature works, you can find God. इस प्रकार मैं प्रकृतिवादी हूँ, इसलिए मैं प्रकृति मेरी पहली बाइबल थी। यदि आप ध्यान दें कि प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है, आप परमेश्वर को पा सकते हैं। Anywhere you look, you'll see God if you get God in the heart and watch it. आप कहीं भी देखें, आप परमेश्वर को देखेंगे, यदि परमेश्वर आपके हृदय में है और उस पर ध्यान दें। Now when they talk of reincarnation and stuff, that's foolish. It cannot be. अब जब वे दोबारा जन्म की बातें करते हैं और वे चीजें, ये मूर्खता है, ये नहीं हो सकता। We find out that a plant dies, goes into the ground, the seed rots, it lives again, it's resurrection. And all Christianity is based upon resurrection. हम पाते हैं कि पेड़ मरता है और भूमि में चला जाता है, बीज सड़ता है और फिर जीवित होता है। ये पुनरुत्थान है और सारी मसीहत पुनरुत्थान पर आधारित है। And we can see that that's true. Death, burial, resurrection. The summers, the winters, all nature blends right in. और हम ये देख सकते हैं कि ये सत्य है। मरना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान, गर्मी, जाड़े और सारी प्रकृति इसमें मिलती है। My first Bible was watching how those trees died, how the sprouts come up again, how the wind would blow it over, it would come back again, how the little flower died, lived again. मेरी पहली बाइबल उन मरे हुए पेड़ों को देखना था, कैसे किल्ला फिर फूटता है, कैसे हवा इस पर बहेगी, वो फिर से वापस आएगा, कैसे छोटा फूल मर गया, फिर से जिया। And all those different things, it made me know that there was a power of resurrection somewhere. और वो सारी विभिन्न चीजें, इसने मुझे जानकारी दी कि कहीं पुनरुत्थान की सामर्थ है। Now the tree has perpetual life, we have immortal life. The tree will come to its final end. We never can. We have immortal life. पेड़ का निरंतर जीवन है, हमारे पास अविनाशी जीवन है। पेड़ अपनी अंतिम समाप्ति पर आ जाएगा, हम कभी नहीं हो सकते, हमारे पास अविनाशी जीवन है। Now, I began to study the eagle when I read this. What about the eagle? जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने उकाब का अध्ययन करना आरंभ किया कि उकाब के विषय में क्या है। I find out that the eagle is a very odd bird. He can fly higher than any other bird that there is. He's a special built bird. मैंने पाया कि उकाब एक भिन्न पक्षी है, वो किसी भी पक्षी से जो है बहुत ऊंचा उड़ सकता है, वो विशेष बना हुआ पक्षी है। He builds his nest in the rocks, way up high. He's a very odd bird. वो ऊंची चट्टानों में अपना घोंसला बनाता है, वो बहुत ही विचित्र पक्षी है। And another thing, his feathers are so tight you can't pull them out with a pair of pliers. He's a huge mammoth bird, one of the biggest there is. और दूसरी बात, उसके पंख इतने कसे हुए होते हैं कि आप कठिनता से उसे प्लास से खींच नहीं सकेंगे। वो बड़ा विशाल पक्षी है, बड़े बड़े पक्षियों में से एक। And he's a very odd bird, but he's built special because he has a special work to do. और वो बहुत विचित्र पक्षी है, परंतु वो विशेष प्रकार से बना है क्योंकि उसे करने के लिए विशेष कार्य है। The word eagle means ripper with the beak, and he feeds with the beak, a very beautiful thing of the Word of God, feeds from mouth to mouth, God feeding His children. उकाब शब्द का अर्थ है चोंच से फाड़ने वाला, और वो चोंच से खाता है। परमेश्वर के वचन की बहुत सुंदर चीज, मुंह से मुंह में खाता है। परमेश्वर अपने बालकों को खिलाता है। And then he builds his nest high, and he has that for a purpose. And everything
और फिर वो अपना घोंसला ऊंचे पर बनाता है और उसमें ये किसी विशेष उद्देश्य से है और आदि आदि। Now, if the eagle had a great powerful wings, that's for deliverance. अब यदि उकाब के बड़े सामर्थी पंख होते हैं, ये छुटकारे के लिए हैं। And another thing the eagle does, it's strange, he renews his youth. The eagle, after so long a time, just rotates and comes right back to a young eagle again. Brings himself right back. He renews his youth. दूसरी चीज जो उकाब करता है वो विचित्र है। वो अपनी युवावस्था को नया कर लेता है। उकाब बहुत समय पश्चात चक्र चलाकर फिर से युवा उकाब में हो जाता है, स्वयं को वापस लाता है। वो अपनी युवावस्था को नया कर लेता है। That's another type of the church of God's people. We'll get all down and kind of stale, then all at once the Holy Spirit comes and renews us again. ये दूसरे प्रकार की कलीसिया है। परमेश्वर के लोग हम नीचे की ओर चले जाएंगे, एक प्रकार से घिसे पिटे हो जाते हैं, तब एकदम से पवित्र आत्मा आता है और हमें फिर नया बना देता है। God renewing the experience and the youth of His church, giving them a new experience. That is the type of the eagle. परमेश्वर नया अनुभव देता है और उसकी कलीसिया की युवावस्था उन्हें नया अनुभव देती है। ये एक उकाब का प्रकार है। Some years ago, I used to do a lot of riding, ranch, and we was up on Troublesome River in Colorado. कुछ वर्षों पहले मैंने बहुत ही घुड़सवारी की है चरागाहों में, और हम लोग कोलोराडो में ट्रबलसम नदी